Good day everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Panita bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. Tragedy struck at Barrafield Airport in South Australia today when a plane crashed into angle during landing attempt, resulting in a significant fire. Local media report confirmed that two individuals identified as the pilot and a passenger lost their life in the incident. 11 other people have been hospitalized with varying injuries. Emergency services are currently monitoring scenes, and the police stating that the immediate vicinity have been evacuated for safety reasons. Authorities have further detailed the extent of injuries sustained by others. One individual is in critical condition with life-threatening injuries, while two others have sustained serious injuries. Additionally, one person suffered minor injuries and the 6 individuals were treated for smoke inhalation. What is known as a DA-42 four-seat twin-engine plane took off from Barrafield. Shortly after takeoff, it has tragically crashed into Hangar 54 at the airport. Upon collision, that is obviously significant injuries and fire and damage. 2 persons on board that plane have died tragically. The deceased were in the aircraft. At this point in time, I'm not minded to elaborate too much more. Notifications are being made to family members in relation to this unfortunate incident. It was in its portfolio used for training of students as well. Again, I'm not going to draw that link at this point in time that it was a student until I've had further confirmation from the investigations team and we've clarified and validated that information. Defence Minister Rajnath Singh is scheduled to hold bilateral talk with Italy Minister of Defence Giulio Crestio in New Delhi tomorrow. The meeting will focus on enhancing defence cooperation between India and Italy. Both ministers are also anticipated to exchange perspective on global and regional security challenges. This following meeting yesterday, where India Defence Minister met with Kyrgyzstan Defence Minister Lieutenant General Duran Konchin in the Vishay, Kyrgyzstan. Following that engagement, ministers stated had an extremely productive meeting with Kyrgyzstan Defence Minister Major General of the sidelines of SCO Defence Minister meet in the Vishay. He further stated India and the Kyrgyz Republic are a strategic partner that enjoys a value of democracy, development, culture and rich heritage. India attaches high priority to developing its partnership with the Kyrgyz Republic. Bilateral cooperation between the two nations spans diverse sectors, with defence cooperation forming an important pillar of our relation. इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है। एक्सेलेंसी, पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट
ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की चेयरमैनशिप के दौरान काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन लीडिंग टू टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के विषय में जारी हेड्स ऑफ स्टेट का ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी शेयर्ड कमिटमेंट को दिखाता है। इन तीनों इवेंट्स से निपटने के लिए एक यूनिफाइड फ्रंट की जरूरत है जो सेफ हेवंस को खत्म करे और किसी भी पॉलिटिकल एक्सेप्शंस को अस्वीकार करे। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा आघात करता है। इस विषय में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते हैं। Prime Minister Modi visited Uttar Pradesh today. During a visit to Varanasi, the Prime Minister offered prayer at the Kashi Vishwanath temple. Prime Minister Modi inaugurated several development projects for Uttar Pradesh. He also laid the foundation stone for the Ganga Expressway. Addressing a public rally on the occasion, Mr. Modi stated that the BJP is headed for a historic victory. He added that the election result will be 5 states will people India toward development. जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी। 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। Let's take a break. We will be back soon. নমস্কার, আপন কোন মিডিয়া ও এন্টারটেইনমেন্ট জগৎ প্রতি প্যাশনেট? ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଥା କହିବାର କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏନ୍ଟିଭି ନିଷ୍କର୍ଷା ବିଷୟରେ।
ओडिशार एक विश्वस्त मीडिया चैनल जहाँ यूट्यूब टेलीविजन एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रे लक्ष लक्ष दर्शकों पाख पहुंचुअछि। आम चैनल रो हेडक्वार्टर अछि कटक ओडिशा रे। आउ आमे वर्तमान आम टीम एक्सपैंड करूछु। आमे एबे 5टी इंपोर्टेंट पोजीशन पाई कैंडिडेट खोजुछु। प्रथम वीडियो एडिटर, प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट। द्वितीय ग्राफिक डिजाइनर, विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड। तृतीय सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति। चतुर्थ कॉपी एडिटर कम एंकर, जी लेखा भी जानती कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट। एवं पंचम कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर, निजो आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति। क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड, आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि। टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार। ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिवार एक्सपीरियंस एक बड़ो एडवांटेज। भाषा विषय रे आपणंकु ओडिया, हिंदी और इंग्लिश मध्यरु अति कमरे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार। जेउमाने अधिक भाषा जानती तांकु प्रायोरिटी मिलिबो। आवेदन करिबा अत्यंत सहज। आपणंको रेज्यूम, शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nisharsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 99376190039 बा 7894855662। एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे, यह एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो। आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु। आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत। धन्यवाद। Welcome once again. The Chief Minister is scheduled to visit Keonjhar today. During this visit, the Chief Minister will inaugurate electric bus and the bus depot in Keonjhar. Additionally, a total of 187 development projects with an estimate cost of 130 crore rupees and 24 lakh rupees will be inaugurated or have their foundation stone laid aimed at overall development of Keonjhar. Initially, 25 state-of-the-art electric buses will commence operation 6 key routes with the city. This bus service will be managed with an expenditure estimate of 140 crore rupees for the next 10 years. आज जिलार विकास पाई प्राय 1047 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर उन्नयन प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर शिलान्यास करागला। एथिरे 105 कोटी टंका मूल्यर 23 प्रकल्पर उद्घाटन और 702 कोटी टंका मूल्यर 64 प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर आम स्थापना करिसेंती। आज शुभारंभ होइतवा प्रकल्प गुड़िक मध्य सड़क उन्नयन, जलसेचन, छात्री निवास, अग्निशम सेवा केन्द्र, स्ट्रीट लाइट, परिमल व्यवस्था, बस स्टैंड, स्टाडियम, स्वास्थ्य भित्तिभूमि, कल्याण मंडप बड़ी अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प जिलार विभिन्न कोण अनुकूल प्रतिष्ठा करने जहाँ जनसाधारण दाबी अच्छी, जहाँ आपण दाबी अच्छी आम आज करने जाऊँगी। आहरी 2026-27 वर्ष जिले में 240 कोटी टंका मूल्यर आउ 119 गुरुत्वपूर्ण नूतन प्रकल्प कार्यकारी होगापाई मुझे आज ये घोषणा करुच्ची। से प्रकल्प गुड़िक आपंकर आगामी दिन में खूब शीघ्र कार्यकारी आपण जो दाबी थिला मेगा स्टील प्लांट आज आपंकर से स्वप्न पूरण होगापाई जाऊँगी। केन्दुझर पाटना ठारे मेगा स्टील प्लांट जो JSW भली बहुत बड़ा कंपनी आज करने जाऊँगी एवं प्रशासन जिला प्रशासन तरफ तार भित्तिप्रस्तर स्थापना चली तार पब्लिक हियरिंग ग्राम सभा कम चली। आज आम 7 रु अधिक ग्राम आज पलिसभा सारी किसी ग्राम पलिसभा सरला तार भित्तिप्रस्तर स्थापना होगापाई जाऊँगी एवं केन्दुझर जिला शिल्प समृद्ध जिला हम से भाव में आम जो अनेक प्रकल्प आज करने जाऊँगी। खाली केवल शिल्प माने स्टील नुह, एठी आम आपारेल एवं टेक्सटाइल भली प्रकल्प करने जाऊँगी। डाटा सेंटर करने जाऊँगी, टेक बिजनेस पार्क करने जाऊँगी। आज आम जो अनेक हजार हजार पिला निजुक्ति पाई परिबे। आम जो आपारेल करते गत
थर मु आसी जिते बलभद्रपुर रांकी पाखे सेठी आम 200-300 कोटी टंकार प्रकल्प को शुभारंभ करिसेंती। सेठी 1000 कोटी टंकार प्रकल्प हब आपारेल हब आमर पाखापाखि प्राय 6-7 हजार रु अधिक बेसिकाली महिला माने माँ भौणी माने आपण माने सेठी चाकरी पाई परिबे। बलभद्रपुर को टाउन बस जीव आपण माने जीवे सेठी आपनकर से आपारेल इंडस्ट्री रे काम करिवे आउतरे बस नेकरी आपण मानकु सब जगह रे छाड़ी देबो एवं सेठी पई आपण मानकु ये आगामी दिन रे खूब शीघ्र ये प्रकल्प रो शिलान्यास पर आज आरंभ हेबा पई जाउछि। डाटा सेंटर आज आपनकर आमर नॉर्थ यूनिवर्सिटी रो बा धरेन्द्र यूनिवर्सिटी रो साउथ कैंपस रे ये प्रकल्प आरंभ हेबा पई जाउछि। 250 कोटी टंकार ये प्रकल्प रे सेठी भी 200 रु 300 पिला काम करिवे आम पिला माने सेठी जॉब पाइबे। डाटा सेंटर गोटे ओडिसा रो द्वितीय डाटा सेंटर ये ओडिसा रो राजधानी भुवनेश्वर पर केंद्र हेबा पई जाउछि। ये अत्यंत आवश्यकता अछि आज दिन रे सही बड़ी टेक बिजनेस पार्क ये केंद्र तैयारी हेबो एवं सेथि पई आसंता मास मानकर जेते बेले मु आसीबी शिलान्यास करिवा पई आपनकर केंद्र उपकंठ रे एक 13-14 महला विशिष्ट विशाल एक बिल्डिंग रे ये प्रकल्प आरंभ हबो एवं जोथिरे कि एठी मध्ये शह पिला नियुक्ति पाइबे एवं धीरे धीरे केंद्र ये गांवलिया सहर रो गोटिए बड़ मेगा माने आपनकर ग्रेटर केउंझर सहर हवा पई ये प्रकार रो व्यवस्था आज हम सरकार करिया पई जाउछंती। A meeting was convened to resolve the Chandan Yatra dispute. The meeting, chaired by Pune District Collector Divyajyoti Parida, took place at Sri Mandir office. The Mahanayak of Chatisa Nijog, member of Managing Committee, and the official from the Sri Mandir administration. Yesterday, the deities had to return to the Sri Mandir without participating in the Chapa Khela due to the conflict among the servitors. The Chapa Khela at Narendra Pokhari was suspended yesterday following a dispute between Singh Nagri and the Sadhu Swara servitors. The disagreement was over the number of servitors to be included in the chop. After waiting of approximately 3.5 hours with a resolution, the deities returned to the Sri Mandir. Additionally, the day Chapa Khela was also cancelled due to the Kala Baisakhi storm. Preparation for the night chopper began at 9 pm, but the dispute remained unresolved until 12:30 am. Subsequently, considering the strong wind and rain, the deities returned to the Sri Mandir without playing the chopper. Voting is underway for 142 seats amidst strict security arrangement. By 11 am, a voter turnout of 39.97% was reported. The fate of 1,448 candidates will be decided by over 3.21 crore voters in the phase. Polling is taking place in Assembly constituency including North and South Kolkata, Howrah, North and South 24 Pranganas, Nadia, Hooghly and the East Vardhanam following the widespread violence in the first phase. Stringent security measures have been put in the place for today's vote. ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज में वो सेकंड फेज में खत्म होने वाला है। দলের চেয়ারেও আছি আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক। কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম
এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে, যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স, উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ হাউস। এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। Let's take a break. We will be back soon. নমস্কার, আপন কোন মিডিয়া ও এন্টারটেনমেন্ট জগত প্রতি প্যাশনেট? ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଥା କହିବାର କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏନ୍ଟିଭି ନିଷ୍କର୍ଷା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କଟକ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟିମ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ 5ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜୁଛୁ। प्रथम, वीडियो एडिटर। प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट। द्वितीय, ग्राफिक डिजाइनर। विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड। तृतीय, सोशल मीडिया मैनेजर। डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति। चतुर्थ, कॉपी एडिटर कम एंकर, जिए लेखा भी जानती, कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट। एवं पंचम, कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर। निज आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति। क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले, फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड, आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि। टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार। ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिबार एक्सपीरियंस एक बड़ो एडवांटेज। भाषा विषय रे आपणकू ओडिया, हिंदी और इंग्लिश मध्यरु अति कमरे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार। जेउमाने अधिक भाषा जानती तांकु प्रायोरिटी मिलिबो। आवेदन करिबा अत्यंत सहज। आपणको रेज्यूम, शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nishkarsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 9937619039 बा 7894855662। एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे, यह एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो। आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु। आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत। धन्यवाद। Welcome once again. Chief Minister Mohan Charan Majhi has ordered a RDC inquiry to the incident where a body was taken to a bank in Keonjhar, Patna. The Chief Minister directed the RDC to investigate the cause of this unfortunate event and submit a report. The Northern Division RDC will begin the inquiry today. Expressing his deep concern over the incident, the Chief Minister has also advised officials to be more sensitive in their approach. Earlier, following the Chief Minister intervention, Jeetu Munda from Dinali village in Kendujhar received his dues. The district administration promptly provided Jeetu with a financial assistance of 30,000 rupees from the district Red Cross Fund. Furthermore, direction have been issued to expedite arrangements for Jeetu Munda to obtain a legal health certificate. The bank has also delivered the pending amount of 19,300 rupees owed to Jeetu Munda directly to his residence. The local Tehsildar personally oversaw the accelerated their process. बढ़िया गति आएगा सब पाइल दुखजनक घटना
तापर आम इनक्वारी करके बर्तमान आम रेडक्रस तरफ 20,000 टଙ୍କା दिखाई और आरआई मध्यम इनक्वारी कर लिगल जो अच्छा सागे बैंक सहित कथबार्ता होकर जो बैंक में 19,000 केत टଙ୍କା अच्छी आणिकी ये पैसा दे दिया सर ये सब ही आसते भाई कलरा मुंडा भाई जीतू मुंडा नहीं आसते से प्रथम आसिले बैंक रे मोर भौणी खाता पैसा अच्छी जहाँ मुझे मुझे ना सेमती तुम्हें नहीं पार ना अन्य पैसा आउ जड़े नहीं पारत ना से मुझे नेबी मु तार ये अच्छे आगे किसी भल भल मंद हेल्ले ही जाकि तुम नहीं पार ना नहीं पार ये कर तेणु तुमको मृत्यु प्रमाण पत्र दरकार मृत्यु प्रमाण पत्र आनी सारा जाकि नॉमिनी सेटलमेंट हम हेल्ले ने से कहला से रागिक मु तार भाई मुझे जिन कहले अलबत नेबी आज पैसा नहीं जी मुझे आज सेमती हुए बैंक बैंक गाइडलाइन अनुसार जहाँ हवा कथा कागज पत्र आवश्यक कागज पत्र लगिक हम से बुझी पलैले 2 घंटा पर कंकाल शबटी को नहीं आसे आगर भी मुझे जानी से किसी डेथ कर कौन कि आगर 2-4 थर भी आसवा जो कहते आसी ना कल ही प्रथम थर आसते हृदय विदारक दृश्य सोशल मीडिया रे घूरी बुलूची जो समय मुझे देखली एत व्यथित हेली और कौन काम मोर रुचि रहा नहीं संवेदनशीलता अभाव चरम उदाहरण यहीटा गोटे लोक गरीब लोक मत लगुच गोटे घटना थिला दाना माझीर घटना जे आदिवासी लोक निजर स्थिर शवटा को एम्बुलेंस नबा फल कांधरे बुहीकि नेला घर पर्यंत 14 किलोमीटर से घटना पर ये घटना मत बहुत विचलित कला एवं बाबद विभाग अधिकारी मान सागर सरकार सागर कथबार्ता करी तार पैसा तो से फेरी पाइला किंतु सेतकी नुह कंकालटा बाहर करके नेबापी ताकू पड़ला केते कष्ट लगी केते जंत्रणा हो जो अधिकारी माने एभलिया अमानवीय व्यवहार कले तांकर विरुद्ध दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार आवश्यकता अछि जिलापाल सागर बाबद मोर कथबार्ता हेबो राज्यर अधिकारी मान सागे कथबार्ता हेबो जो ऑफिसर एभलिया व्यवहार कला मत लगुच तार कार्य रहिबार कौन नैतिक अधिकार नहीं आगुरी ये केते घटना से करिथिबो आमे जानी ना ये घटना कंकालटा धरिके आसिला बेल जना पड़ा आकु से व्यवहार मनुष्यर सुधरे नहीं तेणु मु राज्य सरकार को परामर्श देछि दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु जिमिति पूरा समाज देखिबो। A suspect has died under unusual circumstances while in police custody at the Devugaon police station in Nabarangpur district. This incident has raised serious question about the police capability. The deceased, identified as Purnakala from Medina Panchayat, was arrested in connection with the kidnapping case. He had allegedly abducted a minor a few days prior. Purna was scheduled to be produced in court today, but he passed away before the court appearance. The death of the youth inside the police station has caused widespread concern in the local area. Residents are demanding an investigation into whether the suspect committed suicide or if he was beaten to death by the police and the scene takes to look like a suicide. The suspect's death in police custody clearly highlights the police inefficiency. Meanwhile, the Nabarangpur SP has stated that the incident is being taken seriously and an investigation has commenced. The SP assured that the action will be taken against those responsible after the investigation and the victim family will be compensated. मोर ना हूँ रतन कला घर हूँ अंचला पंचायत भी अंचला ब्लॉक डाबगाँ जिला नवरंगपुर घटनार कथा से आम पूर्णकलार नहीं कि पूर्णकलार गोटे झील धामनागुड़ार झील सहित फेरार होता मोर पाखे आए धामनागुड़ार लोक कौन खोजाखोजी कर कि ना मुझे तो जानी नहीं घर वाला भी कहले ना छोट घटना ना जीवा पचारि डाक नहीं छोट घटना और ठीक अच्छे खोजुचु खोजु 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 पाइलु ना मैंने बाहर 27 तारीख रु तार फेर भी यार कराला 27 तारीख को थाना हैंडओवर कुआड़े फेरार होते जानी नत पार्लु तब जानलु थाना आनलु थाना आनबार ये गला तार झील पार्टी डकाइले आमको डकाइले समस्त डकाइले The IMD has issued a 6-day weather advisory for Odisha, predicting hot and humid conditions during the day, followed by nor'wester and the thunderstorm in the afternoon. 22 districts have been placed under a nor'wester warning, while 16 districts had caution for heat and humidity.
The IMD has issued an orange alert for Keonjhar, Mayurbhanj, Baleshwar and the Bhadrak district, forecasting wind and 50 to 60 km per hour. Meanwhile, Jharsuguda continued to record soaring temperature. Yesterday, the city was the hottest in the state, reaching 45 degrees Celsius. 11 cities across Odisha recorded temperature above 40 degrees Celsius. However, the afternoon showers have brought some respite from the prevailing heat. The sudden nor'wester storms, accompanied by thunder and lightning, have provided relief to the residents from the sweltering heat and humidity. That's all for now. Stay tuned for more updates.